all of you. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Today we all are gathered here on this revered occasion of Republic Day, the day on which the Constitution of India came into force, and in real sense India became a sovereign country. Republic signifies the power which is supreme, and that is our Constitution, which is much important to us than our holy books, as it laid the foundation of our country. On the night of 14th August 1947, when the world was sleeping, India was waking to life and freedom. India became free from British rule, but now more problems are facing. The biggest question arises how to govern such a large diversity country. Of our country plan to make a book that contains all rules, regulations and norms according to which our country must be governed. Then our constitution was ready by the Constituent Assembly within 2 years, 11 months and 18 days. Our republic has come a long way, and we must appreciate that our voyage is far from complete. There is still water to cover, still gaps to fill, still tears to wipe. So we have to recalibrate our yardstick of achievement from quantity to quality, from a literate society to a knowledgeable society, from a nation that has rooms for all individuals to a family that invokes, encourages and celebrates the yardstick of each person, each individual, each daughter and each son. Now again we require the same unity that was at the struggle time, same unification with which we fight against Corona. Same patriotic feeling was required to free our country from the quench of colonialism, casteism, terrorism, corruption. Otherwise, we will lose our country again to some evil minds. Our ancestors gave us a glorious past. We have to create a memorable future. At last, I just want to say, freedom is not about the rule of each man being vanished. Freedom should be in thoughts. Freedom should be in speech. Freedom should be women roaming on the street without fear. Freedom is no corruption. Freedom is no corruption. Freedom is poor getting their right. Freedom is honesty. So, if you want to be free, then steps are your own. As our fighter said, कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. So, the nation is in our hand. We, the people, gave ourselves this constitution, and we, the people, are the upholders and custodians of its principle. It is our responsibility to make our country a golden bird again. जय हिंद, जय भारत. और मेरे प्रिय मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने अपने शहीदों को नमन करते हुए एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा रचित है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं नमन उनको पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोड़ आई बहन जिसने सावनों में
लगाई कि है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, कि है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या जब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचकेता गया है। कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जो इस देह को रात देकर लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की रथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे। पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। धन्यवाद।
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे हर दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हाय कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। उप प्रधानाचार्य महोदय, मान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम स्मृति रमन सिंह है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मेरे विचार इस बात पर हैं कि एक नागरिक के लिए गणतंत्र का अर्थ असल में क्या होता है। आज 72वां गणतंत्र दिवस है। भारत एक गणतंत्र देश क्यों है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, चलिए सार में समझते हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसका अर्थ ये है कि हमने एक ऐसे लोकतांत्रिक शासन को अपनाया जिसे जनता ही चुने और जनता द्वारा ही शासित किया जाए। गणतंत्र का सीधा अर्थ है गण का तंत्र, यानी आम आदमी का सिस्टम,
जहां आम आदमी या जनता राष्ट्र के मुखिया को चुनती है और ऐसे मुखिया को चुनती है जो उसके सुख दुखों को समझकर देश की कमान संभाल सके। मगर ये भी कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश का सैद्धांतिक रूप से तैयार किया गया संविधान व्यवहारिक रूप से कामयाब तो क्या लागू ही नहीं हुआ है। हमारे पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में हर शख्स को, हर नागरिक को अधिकार दिए गए हैं जिसकी बदौलत वे अपनी जिंदगी जी रहा है। परंतु आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये अधिकार होते हुए भी उन्हें इन अधिकारों के साथ अपना जीवन जीने भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद के आगे आम आदमी घुटने टेक देता है। इससे लड़ने की लड़ाई हमें अभी भी जारी है, परंतु कामयाबी अभी कोसों दूर है। जहाँ एक तरफ हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बात करते हुए एक ऐसे समाज की ओर लेकर जाता है जहाँ पर सब बराबर हों, धर्म के नाम पर बिल्कुल भी भेदभाव ना हो, परंतु वहीं दूसरी तरफ हमारे बीच जलता हुआ सुलगता और में आए दिन देखने को मिल जाता है। आज भी भूख और गरीबी के कारण हमारे अपने तड़पते और बिलखते हैं। बात पर गरीब मुफलिस के तौर पर गणतंत्र ठिठुरता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज भी दलितों को सिर्फ इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो दलित हैं और वह अछूत हैं, और हमारा संविधान उन दोषियों को सजा देने के बजाय सिर्फ तमाशा देखता रह जाता है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस मनाने का अर्थ यह है कि हमारा देश लोकतंत्र की राह में आगे बढ़ रहा है। पर क्या वाकई हमारा देश लोकतंत्र की राह में आगे बढ़ भी रहा है? हमारे गणतंत्र का अर्थ ये है कि गण की इच्छा के अनुसार तंत्र में फैसले लिया जाए, पर क्या सच में गण के मन के अनुसार ही तंत्र फैसले ले रहा है? और जवाब है नहीं। जब हम हिंदुस्तानी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तब हमने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहाँ पे एक उम्मीद की नई किरण हो, जहाँ एक नया कल हो, परंतु आज ऐसा प्रतीत नहीं होता है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में एक बहुत खूबसूरत पंक्ति कही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिसका अर्थ ये है कि सिंहासन पर बैठने का हक सिर्फ जनता को है और जनता ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाती है जो उसकी बातों को सुने और देश संभाल सके। संविधान में हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं अधिकारों के साथ, और मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम उन अधिकारों को समझें और जानें, क्योंकि आज अगर दलित को प्रताड़ित किया जाता है तो वह इस कारण से क्योंकि दलित जानता ही नहीं कि उसे दलित होने के कारण प्रताड़ित किया नहीं जा सकता। अगर वह जानता तो अपनी आवाज बुलंद करके उनके खिलाफ लड़ता। हमें आज का दिन सिर्फ जश्न के लिए नहीं, सुधार के लिए समर्पित करना चाहिए। खुद में सुधार और देश में सुधार। देश में सुधार का अर्थ यह है कि हम उन क्षेत्रों को पकड़ें सुधार के लिए जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कि कोरोना काल में हमने मजदूरों को देखा जो अपने वर्किंग एरिया से अपने घर तक के लिए उन्होंने खूब मुसीबतें झेली। उन्हें इतना लंबा सफर खुद अकेले तय करना पड़ा जिसके लिए कोई खासा प्रबंधन नहीं थे। महिलाएं देश के दिल्ली में ही सुरक्षित नहीं है, हम तो दूसरे कोनों की बात करते हैं। हम चीनी सामान बॉयकॉट करने की बात करते हैं, पर हम बॉयकॉट तभी तो करेंगे जब हमारे देश में उस प्रकार के सामान बन रहे होंगे। हम चीनी सामान हमें किफ़ायती और अच्छे सामान देते हैं, परंतु क्या सच में भारत में ऐसे सामान बनते हैं जो चीनी सामानों का सामना कर सकें? और जवाब है नहीं। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमें सुधार की जरूरत है, और शायद इसलिए हम आज भी दूसरे देशों की बदौलत पीछे हैं। हमें इस गणतंत्र दिवस इन्हीं क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत ताकि हम एक ऐसा राष्ट्र बना सकें जिसे हमने अपने सपनों के भारत में देखा था। और ये तभी संभव है जब हमारी आने वाली युवा पीढ़ी यानी कि हम सब पढ़ें और समझें। हम आज से ही अगर अपने देश के बारे में जानेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को समझेंगे, तभी हम एक आगे अच्छी युवा पीढ़ी बनाएंगे और वही युवा पीढ़ी आगे जाके एक अच्छा देश का निर्माण करेगी। आइए इस गणतंत्र दिवस हम शपथ लेते हैं कि हम जो अपने अधिकार और जिम्मेदारी नहीं जानते उन्हें भी जागरूक करेंगे और अपने देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद। प्यारे प्यारे बच्चों, 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 we will destroy China's population 1.4 billion और uneven social stratification, या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, राइट? नो, नहीं। सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम।
ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा तो सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक वाली जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज है। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाए हैं, गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक। ऐसा अंजाम लिखा है हमने, देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया। रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का पहला प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व डेसिमल, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहाँ 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो पूरे वर्ल्ड में किसी और कंट्री में नहीं है। कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। यहाँ मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार हैं, जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट वन 100% धोखा फ्री है। जगह जगह लंबी लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप पर तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो, होता है। दरअसल यह जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व में 75% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रैवल करते हैं ना, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ। और दुनिया भर में जितना सोना है ना, उनका 11% सोना तो भारतीय महिलाओं के ही पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं। और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। एवरीवन इज गारंटीड देयर राइट्स इन आवर कंट्री।
दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहाँ विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, किंग ऑफ स्टील, रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जगुआर, लैंड रोवर एंड टाटा ग्रुप, CEO गूगल, सुंदर पिचाई एंड मैनी मोर। अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लैनेट। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिकल फाइबर एंड रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील से लेकर फिबोनाची नंबर तक, बाइनरी कोड्स, पाई से लेकर रूलर तक उस देश की देन है जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश जिसने किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जब विश्व की सबसे बड़ी भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद में उन्हें जमान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहाँ देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोर जोर से धड़कने लगा है, तो आप सब भी मेरे साथ जोर से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। वह अपनी माँ की स्थिति को देखकर, उसकी दशा को देखकर उससे कई प्रश्न पूछता है। ये कविता उस बेटी की भावनाओं को व्यक्त करती है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार।
दो दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। अब जब उस बेटे को ज्ञात होता है कि उसके पिता शहीद हो गए हैं, इस संसार में नहीं हैं, तो वो क्या कहता है, उसका जुनून देखिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो अब काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मुकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मुकाम पूरा हो इस बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया,
Thanks, ma'am. Teachers, my 4th class staff, and dear students, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जब इतना अच्छा डांस हो, इतना अच्छा संगीत हो, इतनी अच्छी कविताएं हो, तो फिर नीरस भाषण सुनने का ज्यादा मन नहीं करता। ये सब डांस और ये सब ना हम लोगों के बाद होना चाहिए, क्योंकि जब इतना अच्छा देख लिया हो तो फिर ये एवरेज को नहीं पूछता कोई। एक शिक्षक होने के नाते गणतंत्र की परिभाषा, गणतंत्र के मायने, रिपब्लिक डे की इंपॉर्टेंस, इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में आपसे बात करूंगा। और इन सबसे पहले जिसको न निज गौरव और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु और मृतक समान है। निज गौरव, कवि ने निज जाति निज धर्म क्यों नहीं कहा, निज गौरव क्यों कहा? निज देश, निज गौरव निज देश पर अभिमान है। अपना गौरव का मतलब अपने इंडिविजुअल का, अपने परिवार का गौरव, अपने समाज का गौरव, अपने देश और प्रदेश का गौरव। जिनको इस चीज की चिंता नहीं है, कवि ने कहा है कि वो निरा पशु और मृतक समान है। देश प्रेम का मतलब कुछ राष्ट्र चिन्हों से तो है। हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रध्वज, हमारे देश का ऊंचा नाम, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की राजधानी, हमारे पशु, हमारी पक्षी, हमारी राष्ट्रभाषा, इनके प्रति प्रेम की बात तो एक लिखित बात है कि ये हमारे चिन्ह हैं, ये हमारे गौरव के द्योतक हैं, हमारे गौरव की निशानी है। हमारा संविधान हमारा गौरव है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये लिखित संविधान है। एक इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, ये लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल भी है, और इसके अंदर करेक्शन की भी गुंजाइश है, और 100 से ऊपर संशोधन भी हो चुके हैं। गणतंत्र का मतलब कहीं पर भी अगर शाब्दिक अर्थ पड़ जाए, गण मीन्स लोग, देश के रहने वाले पब्लिक, और तंत्र का मतलब शासन, मतलब इनका शासन। अगर हम इनका शासन करके, जनता का शासन करके इसकी व्याख्या करें तो यह अराजकता में परिणत होने की बहुत संभावना है। क्योंकि जिस देश में बहुत सारी जातियां हो, बहुत सारे धर्म हो, बहुत सारे लोग हो, अलग अलग संस्कृति हो, अलग अलग त्योहार मनाने की पद्धति हो, वहां पर अगर हम कहें कि सारे लोगों का ही शासन हो, तो केवल एक डर मन में ये आता है कि कहीं ये गणतंत्र, कहीं ये लोकतंत्र अराजकता में परिणत ना हो जाए। क्योंकि जब आप एक समूह को लेकर अगर किसी संविधान के संशोधन में आप चेंज लाते हैं, संशोधन करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक वर्ग को, क्योंकि हमारे यहां पर वर्ग विभाजन भी है, स्तर विभाजन भी है, अलग अलग स्टेजेस हैं लोगों के वैभव की, लोगों की आवश्यकताओं की। तो इसीलिए जब एक संशोधन या एक नियम आता है तो इससे 25%, 30% तक
उसके साथ असहमति भी होती है, और वो असहमति होना निश्चित 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 बात है। अगर आप किसी धर्म के कॉन्टेक्स्ट में कोई चेंज लाएंगे तो आपको एक विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी नीति में परिवर्तन लाएंगे तो उस समूह के का विरोध को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यह लगभग असंभव है कि आप एक संशोधन से 135-130 करोड़ की जनता को संतुष्ट कर सकें। तो फिर क्या रास्ता ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक संशोधन के साथ हम सहमति भी बनाएं, हम देश प्रेम भी बनाएं, हम देश में अराजकता ना पैदा करने दें। तो वो कौन सा ऐसा तरीका है कि गणतंत्र के साथ साथ, लोकतंत्र के साथ साथ उस नए बदलाव को लाकर हम सभी को संतुष्ट कर सकें। यह देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज के परिवेश में है, क्योंकि देश में किसी भी परिवर्तन के साथ एक विरोध शुरू हो गया है, लोकतंत्र, गणतंत्र और न जाने कौन कौन से तंत्र के नाम पर। यह अराजकता कैसे खत्म हो, क्योंकि यह अराजकता अब देश के स्वाभिमान पर भी चोट करने लगी है, क्योंकि असंतुष्ट लोग अब देश में ही नहीं, अब विदेश में भी इसके विरोध में अपनी बात को बहुत प्रमुखता से सामने ला रहे हैं कि देश में यह गलत हो रहा है। जब तक आपके परिवार के घर के अंदर की बात थी तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने विरोध को दर्ज करने के लिए अगर आप विदेश का सहारा लेने लगे, विदेशी मंचों का सहारा लेने लगे, तो फिर गणतंत्र को बहुत सीरियस तरीके से देखने की आवश्यकता है। सन 47 में आजादी मिली और यह संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 से लेकर आज 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। जो 1950 की परिस्थितियां थी जब संविधान बना था, और आज जब उसके इंप्लीमेंटेशन और उसके करेक्शंस की इंप्लीमेंटेशन की बात है, तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमको पीछे की ओर धकेल रही है। शालिनी मैडम ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई कि हमारे देश में ये अच्छा, वो अच्छा, और हम कहां कहां डेवलप कर रहे हैं, कहां हम लोग नंबर 1 है। क्योंकि फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं, फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं, और हमारी उपलब्धियां गिनतियां उंगलियों पर है। मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हमारे विचारों का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। जब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं तो हमको लगता है कि हम विचारों में बहुत ही संकीर्ण होते जा रहे हैं, जबकि हमको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए था। हमको अपने देश के कानून को एक बड़े बड़े पोर्ट्रेट पर देखना चाहिए था, और हम उसको संकीर्ण स्वभाव से उसको आत्मसात करने में लगे हुए। केवल प्रॉब्लम यहीं पर है। निज गौरव की बात कवि ने कही थी, निज देश की बात गौरव की बात हुई थी, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं हुआ था कि हम देश की अखंडता, इसकी संप्रभुता के साथ सौदा करना शुरू कर देंगे। अपनी बात को मनवाने के लिए हम किसी भी हद पर चले जाएंगे। हम अपने से नीचे पायदान पर बैठे व्यक्ति की इच्छाओं, अपेक्षाओं की अवहेलना करनी शुरू कर देंगे, और सबको कुचलकर हम आगे निकलने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अंतर केवल इतना ही आया है कि मुझे लगता है कि हम इस गणतंत्र में, इस लोकतंत्र में बहुत ज्यादा इंडिविजुअल को हम अहमियत देने लगे। अपनी जाति, अपना धर्म, अपना व्यवसाय, अपनी कम्युनिटी की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा है। हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे, और हिंदुस्तान को तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 135 करोड़ इतनी जनसंख्या रेलवे में सफर करती है जितनी कि एक देश की जनसंख्या है। और अगर हमारे बीच में संकीर्णता आ जाए तो कितना मुश्किल होगा इस देश को चलाना। बड़ा देश है, बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा प्रेम होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़े विचार होने चाहिए,
तभी हम इस बड़ी जनता के साथ, इस बड़े संविधान, इस बड़े लोकतंत्र, इस बड़े गणतंत्र को स्टेबल कर सकते हैं। आज अगर आप छोटी सी चीज को देखें कि आज आपको व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ नियम बनाए गए। जिस दिन लाल बत्ती नहीं होती या जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी नंबर प्लेट छुपी हुई है, उसी दिन आप नियम को तोड़ देते हो। यह ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है, यह बड़ा विचार नहीं है। इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं। टेक्नोलॉजी का डंडा अगर हमारे सर पर है तो हम डिसिप्लिन हैं, अदरवाइज हम तो अराजक ही हैं। अगर वहां पर पुलिस के सिपाही खड़े हुए हैं और डर है चालान का, तो हम रेड बत्ती का सम्मान करेंगे, और अगर नहीं है तो हम सम्मान नहीं करेंगे। अगर एम्बुलेंस हॉर्न दे रही है तो यह जरूरी नहीं है कि हम हटें, क्योंकि उसके लिए कोई चालान का प्रावधान नहीं है। एक नियम आया है कि अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन कौन करेगा, कौन इसकी कंप्लेंट करेगा, वो सब इंप्लीमेंट कैसे होगा? शायद हमने इसको ग्रांटेड ले लिया है, और इसको ग्रांटेड लेकर हम उस नियम को तोड़ते हैं। यह गणतंत्र की परिभाषा में कहीं नहीं आता। अगर कोई नियम बनता है, अगर आपका राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र है और आप लोकतंत्र को बहुत ज्यादा अहमियत देते हो, तो लोकतंत्र के जो बाकी की चीजें हैं जिससे लोकतंत्र मेंटेन रहता है, क्या हमने उनको देखा है, उनको समझा है? क्या हम उन पर खरे उतरते हैं? बस विचार अब ये वाला चाहिए हमको कि हम अपने गणतंत्र को मेंटेन करने के लिए वो कौन कौन से छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनको कि हम अपनी जिंदगी में उतारें, और छोटे इश्यूज, संकीर्ण मानसिकता को छोड़ें। हम कहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स वाले लोग लड़ाते हैं या हमको वो अपने लिए यूज करते हैं। हम यूज क्यों होते हैं? क्या हमने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा? क्या हमने गणतंत्र को नहीं समझा? क्या हमने सांप्रदायिकता को नहीं समझा? टेलीविजन की डिबेट पर अपना पर्सपेक्टिव तैयार करना यह अक्लमंदी नहीं है। अपना एक विचार डेवलप करना चाहिए, और हमारा विचार स्वार्थ से परे होना चाहिए। हमको दूसरे धर्म का आदर, दूसरे की परेशानी का आदर, दूसरे की भावनाओं की कद्र अगर हमने इस लोकतंत्र में नहीं सीखी, तो मुझे नहीं लगता कि यह लोकतंत्र कोई बहुत ज्यादा अच्छी एक व्यवस्था है। लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाने के लिए हमको लोकतंत्र के लायक होना बहुत जरूरी है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र है? विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र होने के लिए आपको लोकतंत्र की आत्मा पर जाना पड़ेगा। लोकतंत्र की स्पिरिट क्या है? लोकतंत्र केवल एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि आप नेताओं को चुनकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को आप उनकी गद्दी पर बैठाते हैं। मोनार्की और एनार्की की चीजों को जब गलत पाया गया, तभी इस डेमोक्रेसी को सर्वोत्कृष्ट पाया गया। लेकिन जब डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो फिर मोनार्की और एनार्की क्या बुरी थी? डेमोक्रेसी के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं, केवल ये नहीं कि हमने वोट डाला और हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, ये लोकतंत्र है या ये गणतंत्र है। क्या हम उसकी स्पिरिट पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, ये सबसे अहम। बच्चों को विद्यालय में लोकतंत्र की परिभाषा के साथ, गणतंत्र की परिभाषा के साथ, गणतंत्र और लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए, उसकी भावना को समझने के लिए भी पढ़ाना चाहिए। सर्वधर्म संभाव, केवल अपने भले के बारे में न सोचना, बाकी के अपने से नीचे पायदान पर
बैठे हुए व्यक्ति की क्या परेशानी है, कौन सा समाज पिछड़ा हुआ है, इस समाज का किस चीज को आगे लाने से उद्धार होगा, ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इस चीज के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। ये जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, ये राष्ट्रीय पर्व हमको पूरी साल भर ये जगाने के लिए आते हैं कि हम कहां गलत और कहां सही हैं। आपको अच्छे बुरे की पहचान लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, क्योंकि अगर आपने अच्छा और बुरा, जाति, धर्म, अपने रिश्तेदार और अपने स्वार्थ के लिए चुनना शुरू कर दिया तो फिर ये लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, फिर ये कोई और सा तंत्र होगा। बच्चों, क्योंकि आप आगे आने वाली पीढ़ी हो और यहां पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर पर जो विचार आपको दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं और आप अपने आने वाले जीवन में उन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ते हो। बड़े लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है। बड़े लोगों के अंदर वो सबके प्रति प्रेम, न्याय व्यवस्था पर विश्वास, देश के कानून पर भरोसा, इन सब चीजों पर यकीन दिलाने वाले केवल अब छात्र हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो चेंजेस ला सकती है। रोड पर ट्रैफिक का जो पालन है वो जब आप करते हो और दूसरे को करने के लिए बाध्य कहते हो कि भाई मेरा देश है, मेरा देश है, इसके कानून को मत तोड़ दो, 2 मिनट की जगह मैं 4 मिनट में इंतजार कर लूंगा, तू मुझसे आगे चले जाना, लेकिन तू मेरे देश के नियम को मत तोड़, तू कूड़ा मत डाल यहां पर। हमारे देश का बच्चा जब ये चौराहे पर ठेले वाले से कहने लगेगा कि अंकल थोड़ा सा आप पीछे कर लो इसको, क्योंकि मेरे देश की सड़क, मेरे देश के लोगों को परेशानी होती है यहां पर जाम में, और थोड़ी सी व्यवस्था आप अगर बना लोगे और थोड़ी सी व्यवस्था आपका ग्राहक बना लेगा तो ये जो मेरे देश का नागरिक यहां सड़कों पर खड़ा हुआ है ये इस तरह से परेशान नहीं होगा। जब हमारा बच्चा इतना वोकल हो जाएगा, जब हमारा नागरिक इतना मन बुद्धि से बिल्कुल देश के प्रति समर्पित हो जाएगा, तब बदलाव आएगा। यह बदलाव निखालस लाल बत्ती, डंडा, चालान से नहीं आता। यह बदलाव हर व्यक्ति के विचार में परिवर्तन से आता है। अगर आपको यह परिवर्तन लाना है तो आपको अपने देश के प्रति प्रेम इस कॉन्टेक्स्ट में करना होगा। अगर आपका अड़ोस पड़ोस गंदा है, आपकी सड़कें गंदी हैं, आपकी सड़क पर अतिक्रमण है और आप वोकल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सहमति उसके साथ है। देश के प्रधानमंत्री को विचार लाए, यही थोड़ा सा अंतर आया 10-15 साल में कि हम लोग विचारवान बनना शुरू हुए हैं। अब एक विचार चाहिए हमको स्वच्छता का, एक विचार चाहिए हमको सर्वधर्म समभाव का, एक विचार चाहिए हमको देश को आगे बढ़ाने का, एक विचार चाहिए हमको दुश्मन से न डरने का, एक विचार चाहिए हमको पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचने का, एक विचार चाहिए पर्यावरण के संरक्षण का और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का। जब तक ये विचार, क्योंकि जो लोग को ये पता ही नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, आगे के आने वाली पीढ़ी कैसे उसको बर्दाश्त करेगी। जब ये विचार नहीं होगा तो क्रियान्वयन नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा तो आपको सामने दिखेगा नहीं। तो महत्वपूर्ण विचार, और विचार देने के लिए विचारवान व्यक्ति चाहिए। विचारवान व्यक्ति आपके विद्यालय में शिक्षक के रूप में हो सकते हैं, घर में माता पिता के रूप में हो सकते हैं, और कुछ हद तक राजनीतिक भी हो सकते हैं जिनके की विचार अच्छे, लेकिन जिनके विचार संकीर्ण हैं वो इस देश को आगे नहीं ले जा सकते। जीना यहां, मरना यहां, और इसके अलावा जाना कहां। आपको इसी देश में रहना है, यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है, सबके साथ रहना है, तो फिर यह संकीर्णता क्यों? इस कोरोना महामारी ने बहुत कुछ सिखाया। हम लोग बहुत दिन तक घरों में रहे, एक दूसरे को देख नहीं पाए, ऑनलाइन चीजें हम लोग करते रहे। थोड़ी सी चीजें जो है वो ठीक हुई और हम लोग विद्यालय में आना शुरू हुए। आज
स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई है कि आज हमारे बीच में यहां पर लगभग 300 लोग बैठे हुए हैं। नॉर्मल कंडीशन सबको ठीक लगती है और एबनॉर्मल में सबको परेशानी होती है। तो जरूरत इस बात की है कि हमको एबनॉर्मलिटी के लिए तैयार होना चाहिए, अपने अच्छे समय में बुरे समय के लिए तैयार होना चाहिए। तो जब कभी भी अच्छा समय आएगा आने वाले टाइम में, हमको बुरे वक्त के लिए तैयार होना होगा। टीचर्स को टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, बच्चों को टेक्नोलॉजी को सही स्पिरिट में लेने की आदत डालनी होगी। बहुत सारी कवायद इसी बात की है ऑनलाइन लर्निंग में कि बच्चे इसको ईमानदारी से पढ़ें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको वाकई में पढ़ें, जो परीक्षा हो रही है उसको ईमानदारी से दें। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। इसमें सबसे ज्यादा जो मदद करेगा वो आपका विचार, आपके अंतर्मन की जो भावना है वो सबसे ज्यादा मदद करेगी कि मुझको पढ़ना है, मेरे टीचर ने पढ़ाया है ऑनलाइन, तो मेरे को इसकी स्पिरिट का ध्यान रखना है, इसकी डिग्निटी का ध्यान रखना है कि मेरी परीक्षा हो रही है। क्योंकि हम अब अंकों की तरफ देखने लगे हैं, हम जीवन कौशल की तरफ नहीं देखते, और जबकि मूल तत्व जीवन कौशल है। प्राइमरी जो है वो जीवन कौशल है, सेकेंडरी है मार्क्स, और हमने सेकेंडरी को प्राइमरी बना दिया है, सेकेंडरी को मैंडेटरी बना दिया है कि नंबर आने चाहिए, बाकी सारे गुनाह माफ। जबकि होना यह चाहिए कि जीवन कौशल सर्वप्रथम, मार्क्स गौण सेकेंडरी। इस व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षकों को काम करना होगा। बच्चों को इस बात की सहमति करनी पड़ेगी, दिलानी पड़ेगी कि आपके लिए जीवन कौशल जरूरी है, वो जीवन में जीवन पर्यंत याद रहेगा, वो आपके संस्कारों का निर्माण करेगा, आगे के आने वाले समय में संस्कार काम करेंगे। मार्क्स एक रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन जीवन कौशल जो है वो जीवन की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि सर सारा खेल तो मार्क्स का ही है, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स जितने आएंगे उसी से नौकरी मिलेगी, उसी से एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में। बच्चों, ये मार्क्स पीछे पीछे आपके आने लगते हैं जब आपके जीवन कौशल आगे होते हैं। लेकिन क्या है ना, हम जीवन कौशल थोड़े से टाइम को दिखाकर हम अपेक्षा करते हैं अच्छे मार्क्स की। आप ज्यादा इंपॉर्टेंस जीवन कौशल को दीजिए, मार्क्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। गाड़ी को सुंदर बनाने के लिए उसके इंजन के पावरफुल होने की जरूरत होती है। उसके अंदर कितने कॉस्मेटिक फीचर्स हैं उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप देश की जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे वो ऑडी हो, हमर हो, BMW हो, इनकी जो खास जो विशेषता है ना, वो इनका पावरफुल इंजन है और इनकी स्टडी बॉडी। इनका जो एक्सीडेंटल डैमेज है वो सबसे कम है। कॉस्मेटिक फीचर्स तो बाद में जोड़े गए। इंजन पावरफुल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है बच्चे का लाइफ स्किल, और जो कॉस्मेटिक फीचर है वो है आपके मार्क्स, आपकी मार्कशीट। तो इंजन पावरफुल होना चाहिए। कॉस्मेटिक फीचर्स तभी काम करते हैं। आप एसी बहुत अच्छा नहीं चला सकते until and unless your engine is powerful। अपने इंजन को ताकतवर बनाइए, फीचर्स को वही फीडबैक देगा, वही सपोर्ट करेगा। यू कैनॉट एक्सपेक्ट टू मच इन योर स्मॉल कार्स, क्योंकि उसके इंजन की क्षमता इतनी नहीं है कि वो स्टडी बॉडी को, बहुत हैवी स्टील को, बहुत बड़े एसी को, बहुत सारे फीचर्स को रन कर सके। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड कार इज अ वेरी पावरफुल इंजन। तो बच्चों, इस बात को समझो। मार्क्स दिखाई देते हैं कागज पर, लेकिन जीवन कौशल दिखाई नहीं देता कागज पर। एसी की ठंडी हवा महसूस करते, लेकिन इंजन कितना पावरफुल है इसका आपको अंदाजा नहीं है। लाइफ स्किल को स्ट्रांग बनाओ, आपके मार्क्स
जो कि कॉस्मेटिक फीचर्स हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। वक्त लगेगा आपके पावरफुल इंजन ड्राइव करने के लिए। और इस बात को आप मेरी को मानो, द अल्टीमेट गोल इज द सक्सेस इन योर लाइफ। योर अल्टीमेट goal is not to just get the mark by hook or crook method, until and unless you have to get 90% marks. This is a shortcut, and the good method of securing marks is to develop your life skills. किसी भी कॉन्सेप्ट को समझो। बहुत सारे सक्सेसफुल बच्चे जो हैं वो 75% वाले होते हैं। उसका कारण यह है कि उसका कॉस्मेटिक फीचर अच्छा नहीं है, लेकिन इंजन पावरफुल है। उसने दौड़ना कब शुरू किया? ग्रेजुएशन के बाद। उसने अपनी एफिशिएंसी कब दिखाई? इंटरव्यू में। उसने आईएएस के इंटरव्यू में अपनी एफिशिएंसी दिखाई, उसने वो कॉन्फिडेंस दिखाया। कल मैं एक आरएएस की सक्सेसफुल कैंडिडेट का एक भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार सही उत्तरों पर आधारित नहीं होता। उत्तर के संप्रेषण, द डिलीवरी ऑफ योर आंसर, उत्तर के संप्रेषण, उत्तर के संगठित स्वभाव, मीन्स टू द पॉइंट, और आपके आत्मविश्वास को परिलक्षित करने पर निर्भर करता है। लोग सोचते हैं कि 10 सवाल पूछे गए तो मेरे 8 सही हो गए तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, और एक कहता है कि मेरे 5 सही हुए, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 5 वाले का होता सिलेक्शन। क्योंकि वो जो टीम वहां पर बैठी होती है वो 10 प्रश्नों के आधार पर आपकी नॉलेज को जज नहीं कर सकती, लेकिन 10 प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके से जज कर सकती है कि ये व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है। मेरी बात को आप इसको समझ लीजिएगा आज, कि जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पर आपके उत्तर के संप्रेषण की परीक्षा होगी कि आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आंसर कैसा है, बेशक वो गलत हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप परीक्षा में बिल्कुल ब्लैंक होकर चले जाओ, हाँ सब आ गए हम, हमारा संप्रेषण देख लो। संप्रेषण आएगा ही नहीं। जब तक पढ़े हुए नहीं होंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो ये कह रही थी कि ज्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं, महिलाएं ये पूछती हैं कि साड़ी पहन के जाएं या सूट पहन के जाएं, हेयर बैंड कैसा लगा के जाएं। लड़के पूछते हैं टाई कैसी लगाएं, कोट के कॉन्ट्रास्ट में हो, जूते कैसे हो, मे आई कम इन पूछें, कुर्सी पर बगैर पूछे बैठ जाएं या नहीं। प्रसन्न चित्त मन से जाएं, ऐसा कपड़े पहन के जाएं जो आपके कॉन्फिडेंस को एनहेंस करता हो, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन न करता हो। ऐसे कपड़े
परंतु आज के समय की सच्चाई भी दर्शाएगी। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बात किए जाते हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने में डरती है। युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, पर सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाता है। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, क्यों किसान फिर कहीं लगे हैं जान स्वयं की लेने। थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। क्या 72 सालों में ये आजाद वतन अपना है? क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है? क्या इसीलिए आजाद ने अंतिम गोली खुद को मारी? क्या इसीलिए रण में कूदी वह नन्ही सी झलकारी? क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था? क्या ऊधम सिंह ने क्रोध को अपने इसीलिए पाला था? गर नहीं तो फिर कैसे चूके हम नया राष्ट्र गढ़ने में, गर नहीं तो फिर कैसे चूके हम राष्ट्र नया गढ़ने में। जिस आजादी के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। जो फूल सूख कर बिखर गया वह फिर से नहीं खिलेगा, जो फूल सूख कर बिखर गया वह फिर से नहीं खिलेगा, जो समय हाथ से निकल गया वह वापस नहीं मिलेगा। पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, सुधार ही हर गलती की असली माफी होता है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गान नहीं गाओ तुम, देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गान नहीं गाओ तुम, अपने अंदर बसे भगत सिंह को जरा जगाओ तुम। मंजिल दूर नहीं राही जब कर ले अटल इरादा, अपना हाथ उठाकर खुद से करो आज ये वादा। मेरे सामने कोई कभी भी भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीड़ित की हर पीड़ा अरनी है। शपथ ग्रहण कर गणतंत्र का उत्सव आज मनाते हैं, शपथ ग्रहण कर गणतंत्र का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है आओ कुछ काम तो इसके आते हैं, देश बुलाता है आओ तो कुछ काम तो इसके आते हैं। धन्यवाद। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, लेकिन आपकी बुक में जो प्रिएम्बल है, एनसीईआरटी के हर बुक में प्रिएम्बल दे रखा है, उसमें 26 जनवरी 1950 की डेट नहीं, उसमें है 26 नवंबर 1949, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकार जो है वो तो 49 में ही कर लिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये अपना जो संविधान था वो सौंप दिया था, भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था, और हाथ से लिखा हुआ संविधान था। और प्रेम बिहारी रायजादा ने ये संविधान लिखा था और सिर्फ 1 रुपया पारिश्रमिक के रूप में लिया था संविधान लिखने के लिए, क्योंकि वो एक परंपरा है, कुछ ना कुछ तो लेना ही चाहिए, तो उन्होंने उसको लिया था। और उसमें जो कैलीग्राफी का काम था और जो पेंटिंग का काम था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो नंदलाल बोस ने उसमें ये काम किया था। अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें तो वो हाथ से लिखा हुआ संविधान है, और उसकी पहली प्रिंटेड कॉपी जो आई थी वो देहरादून में उसका निकला था। अब ये संविधान जो बना ये कवायद है, बड़ी मुश्किल से बनकर के गया। प्रिंसिपल सर ने बहुत उसमें विस्तृत रूप से उसको हाईलाइट किया है कि किस तरीके से संविधान बना और किस तरीके से आजादी आई। देश जो आजाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो उस समय भारत को एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मिल गए थे। तो आजादी के समय इसलिए ध्वजारोहण का जो काम था वो प्रधानमंत्री को दिया जाता। उस समय भारत को राष्ट्रपति नहीं मिला था, भारत को जो राष्ट्रपति मिला वो 26 जनवरी 1950 को मिला। तो इसलिए ध्वजारोहण का काम वो राष्ट्रपति से क्या कहा गया, और राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। लेकिन जो संविधान बनने की जो कवायद थी, जो बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको जो बनाना शुरू किया, तो पहली बैठक जो हुई संविधान बनाने की जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब अंग्रेजों को ये लग गया था कि हम आजाद होंगे, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और संविधान बनाने की कवायद के लिए आया था। और भारत में पूरे भारत से जो है, अब उस समय भारत 2
टू डिवीजन में डिवाइडेड था। एक तो था प्रोविंसेस और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रोविंसेस से भी सदस्यों को चुनाव होना था और प्रिंसली स्टेट के सदस्यों को नॉमिनेशन होना था। और इस तरह से 389 मेंबर्स को मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके तैयार थी। और 2 साल 11 महीने और 28 दिन का समय संविधान को बनाने में लगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। और खास बात बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी उसके सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू उसमें थे, मौलाना आजाद थे, के.एम. पानिक्कर थे, के.एम. मुंशी थे। ऐसे मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर के भारत की तैयारी अहम सदस्य थे। संविधान अब कैबिनेट मिशन ने क्यों भेजा? अब इसके पीछे भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो सन 42 में फेल हो गया था। तो जब उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की एटली की गवर्नमेंट थी, तो जब एटली जब यहाँ पर आए थे 1956 में, कलकत्ता के गवर्नर के मेहमान थे एटली। तो कलकत्ता के गवर्नर ने एटली से पूछा था कि आपको भारत क्यों आपने आजाद कर दिया? तो एटली ने 3 शब्द बोले थे कि भारत से 3 शब्दों की वजह से आजाद हुआ है, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। क्योंकि अंग्रेज जो शासन करते थे वो डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, हमारी सेना की जो भर्ती थे उनकी वजह से वो शासन करते थे। जब आजाद हिंद फौज की में विद्रोह हुआ, उसकी वजह से जब हमारी सेना ने जब विद्रोह किया तब अंग्रेजों के पैर उखड़े थे, तब वो यहाँ से छोड़ करके भागे थे। तब उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था 45 में, यानी कि अब उन्हें लगने लगा कि अब हम देश को छोड़ देंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो संविधान जो बनने की कवायद जो शुरू हुई है, कह सकते हैं कि भारत में शासन की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई थी बक्सर की लड़ाई के बाद, जब 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अब से करीब 250 साल पहले। फिर उसके बाद अंग्रेज 20 साल उसको कानूनों को रिव्यू करते रहते थे, इंडियन काउंसिल एक्ट बनाते थे, हर 20 साल बाद रिव्यू करते थे। फिर उसके बाद वो बनाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर है। और अगर कहेंगे कि हमारे संविधान में सबसे सशक्त चीज क्या है, तो वो फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान ने हमको दिए हैं। इस फंडामेंटल राइट्स की वजह से डेमोक्रेसी और देश में प्रजातंत्र बचा हुआ है और रिपब्लिक बचा हुआ है। हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें समय के साथ बदलाव होते रहे। हालांकि संविधान सन 50 में बन गया था, पहला अमेंडमेंट 1951 में ही हो गया था। और शुरुआत क्या होती है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में टकराव, और इसी जुडिशरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट हमेशा आगे आता है और हमारे संविधान की रक्षा करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की जो सही व्याख्या का काम है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और देश में ऐसे हालत कई बार हुए हैं कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हुआ है, सरकार निरंकुश हुई है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा आगे आई है। अब अगर देखें संविधान की अगर जर्नी को देखें, 1773 से चले, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान बनकर तैयार हुआ, फिर एनफोर्स हुआ, फिर एनफोर्स होने के बाद संविधान में अमेंडमेंट्स हुए। सबसे पहला 51 में हो गया अमेंडमेंट्स, फिर अमेंडमेंट हुआ 56 में। इसलिए कोविड-19 सबसे पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, तेलुगु। जहां तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए उसने बात रखी थी श्रीराम बोलू ने कि इसको हमें एक भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। तो मद्रास प्रेसिडेंसी से सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो बना आंध्र प्रदेश। पंजाब का भी विभाजन हुआ, अलग राज्य बने, वो हिंदी भाषी, हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ। तो ये राज्यों की अलग अलग होने की कवायद शुरू हुई। इस तरह से संविधान में समय के साथ परिवर्तन होने लगे। फिर 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये अब तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस है। सबसे बड़ी डिवीजन बेंच केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बनी थी। 13 जजेस की डिवीजन बेंच थी। इसमें केरल के एक मठाधीश थे, मठों के, उनकी संपत्ति का अधिकार का हनन हुआ था। इसमें
फंडामेंटल कहते उस समय जो सरकार थी वो निरंकुश होती जा रही थी, इंदिरा गांधी एक टावर पर्सनैलिटी बनती जा रही थी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हो रहा था उसमें। तो एक भारत के बहुत बड़े वकील थे नानी पालकी वाला केरल के मठाधीश के पास गए, आइए हम इसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं इसको। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, कृष्णानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। 13 जजेस की बेंच थी और ये डिसीजन जो आया था वो 7 और 6 का आया था, यानी कि 7 जजेस ने इसके पक्ष में दिया था और 6 ने इसके विरोध में इसको डिसीजन दिया था। और उसके बाद से हमारे फंडामेंटल राइट सुरक्षित हुए। फिर उसके बाद 1976 में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया और हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को जोड़ा गया। वो सन 76 में जोड़े थे, इमरजेंसी का टाइम था। फिर उसके बाद 1978 में अमेंडमेंट आया। 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था उसको वहां से हटाया और उसको लीगल राइट बनाया। फिर उसके बाद 1989 में वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया, वोटिंग एज थी वो 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई। ये बहुत बड़ा केस था कि युवाओं को भी भारत में वोट देने का अधिकार मिले। 1989 में ही एक बड़ा परिवर्तन आया था चुनावों के क्षेत्र में, जब पीएन शेषन यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे भारत के। चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग की क्या ताकत होती है। उससे पहले केवल एक ही चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन जब पीएन शेषन आए तो उन्होंने 2 चुनाव आयुक्त अपने साथ रखे और 3 लोगों को मिलकर के जो चुनाव का बोर्ड है वो बनता है। और टीएन शेषन ने ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो था वो टीएन शेषन ने ही लेकर के आए थे, बहुत बड़ा चुनाव सुधार माना जाता है। और गवर्नमेंट मशीनरी का जो चुनाव के समय इस्तेमाल होता है वो टीएन शेषन ने ही बंद कराया था। तो अगर अच्छे अधिकारी आते हैं, अच्छे होते हैं, तो उसकी पावर ताकत को बनाते हैं। फिर 1991 में भारत में चेंज आया, जब भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। उस समय एलपीजी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द ईयर 1991। फिर 92 इन द ईयर 92 में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट था, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया गया था। जो गांधी जी सपना देखते हैं कि स्वराज की बात की, लोगों के हाथों में ताकत होनी चाहिए, ये ताकत 1992 में मिली लोगों को, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट आया और जब म्यूनिसिपैलिटी के और जो चुनाव थे वो रेगुलर वे में होने लगे और उनको संवैधानिक अधिकार दर्जा उनको दिया गया। एंड फिर चेंज इन 2005 जब लोगों को सूचना का अधिकार दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कभी भी जाते हैं सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी आप चाहें वो आप उसको निकाल सकते हैं। 2016 जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, ये 101वां अमेंडमेंट था और अब तक अगर अमेंडमेंट देखें संविधान में तो 115 के अलावा अमेंडमेंट हो चुके हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा चेंज आया, लोकसभा की 2 सीटें जो होती हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रहती हैं। उनके लिए क्यों, अंग्रेजों के लिए क्यों सीटें रिजर्व है? ये अंग्रेजों के जो बच्चे थे उनके लिए 2 सीटें रिजर्व रखी हुई थी। ये जो रिजर्वेशन 2 सीटों का था ये भी खत्म कर दिया गया। अब सब एक साथ 545 सीट्स हैं, इस पर लोकसभा का चुनाव होगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, धीरे धीरे इसमें बदलाव होते जा रहे हैं। जब संविधान बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे और आज अगर देखें तो करीब 445 के करीब आर्टिकल्स हमारे संविधान में बढ़ गए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। थैंक यू। Celebrated on 26 January. On this day in 1950, Constitution was made. I am very proud to be an Indian. I love my country so much. I want to sing a song. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूँगा ना दल दल के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले लूँगा नहीं दम, आगे आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं धम। अब आप सब मेरे साथ बोलिए, जय हिंद जय भारत। थैंक यू। मैं जिज्ञासा कक्षा 11वीं की छात्रा आज आपके समक्ष इस शुभ अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कुछ इस प्रकार है।
कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, जिसको सोच कर सोती नहीं माँ, किताबें देख कर रोती रही माँ, है किसकी वापसी की राह तक दे, कि दरवाजा खुला बाबा क्यों रख दे। वो जो सारी नजरों से गिरा था, न था इंसान जिसका नाम खुदा था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अगर के सामने हंसता गया है, अपना छोड़ कर बसता गया है, एक कैसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो माथा चूमने वाला लहू था, वो जिसने ख्वाब को भी खून किया था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों